جو فرض ہیں جن چیزوں کا جاننا، ان میں دوسرا نمبر ہے نبوت کا۔ نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کون ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے لوگوں کو کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی سے بچانے، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے، کفر اور انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ انبیاء کرام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں۔ انہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں حیرت زدہ ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کی عظیم درس موجود ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ اب نبی کہتے کسے ہیں؟ تو نبی اللہ کریم نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام ہی وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ کریم کی جانب سے پیغام آتا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اور نبی میں تھوڑا سا ڈفرنس۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، رسول اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جسے نئی شریعت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ جیسے نئی شریعت مصطفی ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی، تو یہ جو الگ الگ شریعتیں آتی ہیں یہ رسول ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغام یوں ہی پہنچانے کے لیے جو نبی بھیجے جاتے ہیں ان کو نبی کہتے ہیں۔ وہی کیا ہوتا ہے؟ تو وہی اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں تک بھیجتا ہے۔ اب یہ پیغام بھیجنا فرشتوں کے ذریعے ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کے دلوں میں وحی فرما دے، القاء فرما دے۔ کبھی کبھار نبیوں کو خواب میں بھی احکامات عطا کیے جاتے ہیں، اس طرح سے وحی ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں فرق آخر کیا ہے؟ ان میں ایسا ہی فرق ہے جیسا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو تمام طرح کی انسانی برائیوں سے پاک و صاف، بیماریوں سے منزہ و بری، جو بیماری نفرت دلانے والی ہوتی، باقی زکام کھانسی یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، جو نفرت دلانے والی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک عطا فرماتا ہے۔ ان کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو پوری دنیا کو جتنی عقل دی جاتی ہے نبی کو اس سے بڑھ کر عقل دی جاتی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، حکیم اور فلسفی کی عقل کسی نبی کی عقل کے کروڑوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح سے سارے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہو، ایسے ہی نبیوں کے عقل کے مقابلے میں ساری دنیا کی عقل کو سمجھنا چاہیے۔ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ذاتی ہے، نبیوں کو اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا غیب کا علم عطا فرما دیا۔ تو نبیوں کا علم عطائی ہے، خدا کا علم ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنے آپ اس کو حاصل ہے، اور عطائی کا مطلب اللہ نے دیا تو مل گیا، نہیں دیتا تو نہیں ملتا۔ نبوت یہ ایک ایسا منصب ہے جس کو انسان عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے نہیں پا سکتا۔ کوئی سوچے کہ بہت زیادہ عبادت کر لے، ریاست کر لے، نبوت مل جائے، تو نبوت محض فضل الہی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہاں دیتا اس کو ہی ہے جس کو اس کے لائق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء
अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करना फर्ज है। जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, ऐसे ही नबियों की ताज़ीम करना भी फर्ज है। अदना सी तौहीद किसी नबी के बारे में इंसान को ईमान से खर्च कर देती है। नबी अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, एक नबी को भी इंसान ना माने तो वो भी नहीं हो सकता। तमाम के तमाम अंबिया किराम को मानना लाजमी है। अब अंबिया कितने हैं, इनकी तादाद मुकम्मल तौर पर पता नहीं है। कमोबेश 1,24,000, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हर नबी पर ईमान रखते हैं। जो भी अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा उनको हम नबी मानते हैं। कौन पर भेजा ये अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक की बारगाह में अंबिया इकराम का मकाम बहुत ही इज्जत वाला है। वो अल्लाह पाक के प्यारे, उसके महबूब होते हैं। उन पर वही नाज़िल होती है। उन्हें तरह तरह की कमालात और मोजज़ात अता किए जाते हैं। सारे मखलूक में सबसे अफजल रुतबा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का होता है। यहाँ तक के फरिश्तों से भी अंबिया अफजल होते हैं। अंबिया मासूम होते हैं। मासूम का मतलब यानी उनसे कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से कभी कोई गुनाह का सरसर मान ले तो वो इंसान काफिर हो जाएगा, ईमान के दायरे से निकल जाएगा। अंबिया को मासूम मानना ये अकीदे का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा फरिश्ते भी मासूम होते हैं। फरिश्ते और नबी, इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। इनके अलावा कोई कितना भी बड़ा वली हो, कितने भी बड़े दर्जे पर पहुंचा हुआ हो, वो उससे गुनाह हो सकता है। अलग बात है गुनाह नहीं करते, गुनाहों से अल्लाह के करम से दूर रहते हैं, लेकिन गुनाह हो जाए तो ऐसा मुहाल नहीं है। लेकिन किसी नबी या किसी फरिश्ते से गुनाह नहीं हो सकता। कुरान मजीद में तमाम अंबिया इकराम का जिक्र नहीं है। 26-27 अंबिया इकराम का जिक्र मौजूद है। इनके अलावा जिनका तज़किरा नहीं आया है। हम सबको उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिसको नबी बनाया है उन पर ईमान रखना है। गैर नबी के पास वही नबुव्वत नहीं आ सकती। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो पैगाम पहुंचाने के लिए बंदों तक जो वही फरमाता है वो किसी गैर नबी के पास नहीं आ सकती। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सबसे पूरी मखलूक में जो उस वक्त में जो नबी होता है पूरी मखलूक में अफजल होता है। अलग बात है उनके बाद जो नबी तशरीफ लाए वो उनसे भी ज्यादा अफजल हो सकते हैं। जैसे हमारे नबी तमाम अंबिया इकराम से अफजल है, लेकिन जिस जमाने में जो नबी होते हैं वो उस जमाने में सबसे ज्यादा अफजल होते हैं। अच्छा, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला अब बंद हो चुका है। अब कोई नया नबी नहीं आ सकता। अब कोई ये दावा करने लग जाए कि नबी आखिर ज़मां के बाद कोई और नबी आ सकता है, कि कोई अपने आप को नबी होने का दावा करे तो झूठा कज़्ज़ाब है, वो नबी नहीं हो सकता। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपना नबी बनाया और उनको इल्म अस्मा का मतलब ये तमाम चीजें जितनी दुनिया में क़यामत तक पाई जाएंगी सब चीजों का इल्म नाम अल्लाह ने अता फरमाया और उनकी हकीकतें खुदा तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ताज़ीम के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया और ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत का सजदा। इबादत का सजदा किसी शरीयत में जायज नहीं था, अलबत्ता सजदा ताज़ीमी पहली शरीयतों में जायज था। हमारे शरीयत में ताज़ीमी सजदा भी जायज नहीं है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को वफात बस वादा इलाहिया पूरा करने के लिए आई। खुदा का वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। तो बस आंखें बंद हुई और उसके बाद उसको हयात जावेदानी मिल गई। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में हमारी तरह जिंदा है, उन्हें रिस्क मिलता है, सारे मामलात करते हैं। किसी नबी को कोई माज़अल्लाह मुर्दा अगर मान ले या यकीन रख ले तो वो इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त अक़ीदा करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवाहा कहना चाहिए।
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की शान में कोई ऐसा लफ्ज बोलना जिससे उनकी तौहीन लाज़िम या तौहीन का कोई शायबा भी होना जायज नहीं। चरवाहा कहते हैं बकरी चराने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ तशरीफ फरमा थे, तो मदद के लिए कभी कभार तशरीफ ले गए, ये साबित है। लेकिन बतौर इस्तेज़ा चरवाहा कहना हराम। हराम में इंसान को ईमान से खारिज कर दिया। मुनाफिकीन का तरीका था, एक लफ्ज है मोमिनीन के लिए दुआ करते थे तो ये कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, राइना यानी हमें भी दुआ में याद फरमाइए। तो इस लफ्ज को मुनाफिकीन ने बढ़ाकर बोलना शुरू किया, राइना यानी हमारा चरवाहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज बोलने से मना फरमा दिया कि मोमिनो तुम तो अच्छी नीयत से बोलते हो, लेकिन दूसरे को इससे मौका मिल रहा है, लिहाजा ये लफ्ज बोलना जायज नहीं है। दुआ के लिए कहना है तो राइना की जगह वल्जुरना का लफ्ज इस्तेमाल करने का हुक्म आया। चरवाहा बोलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज नहीं है। तौहीन की नियत हुई तो इंसान ईमान से खारिज हो जाएगा। जो ये माने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसको नबूवत मिल सकती है, उसका क्या मतलब? हदीस पाक में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनल आखिर ला नबी बादी, मैं सबसे आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये हुजूर का फरमान है। इस तरह का अल्फाज भी है, अनल खातम ला नबी बादी, कि मैं सबसे आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर ने ये फरमाया। अब कोई कहे कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला दिया। और जो किसी नबी को भी झुठलाए तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। और हमारे हुजूर को झुठला दे फिर उसका तो क्या हाल होगा वही जानता है। गैर नबी के साथ अलैहिस्सलाम लिखना या कहना, अहले सुन्नत व जमात का मजहब और मसलक ये है कि अलैहिस्सलाम लिखना ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ खास है। गैर नबी के लिए इसको लिखने की इजाजत नहीं है। नबी के इल्म गैब का इनकार करने का काम। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब का फरमाया, अल्लाह की अता से। अब कोई कहे कि गैब नहीं है तो उसने खुदा की अता का इनकार कर दिया। खुदा दे रहा है, आप मना कर, कौन उसने मना करने वाले? खुदा की अता का इनकार किया जिसने, वह इंसान मोमिन नहीं रहे। लिहाजा किसी नबी के इल्म गैब की अगर किसी ने इल्म गैब का इनकार कर दिया तो मोमिन नहीं रहेगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। मज़ारात दरगाहों पर जाकर सजदा करना, ये कबल इस वक्त सवाल है, आगे भी इंशाअल्लाह बहस आएगी, बहरहाल जवाब दे देता हूं। मज़ारात पर जाकर सजदा करना, इसके बारे में अभी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीमी करवाया फरिश्तों से। सजदे ताज़ीमी ये पहले शरीयतों में जायज है, हमारे शरीयत में जायज नहीं है। सजदे ताज़ीमी अगर कोई इबादत की नियत से करे सजदा, इबादत का मुस्तहिक है, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। और ताज़ीम की नियत से करता है तो ये हमारी शरीयत में हराम करने वाला हो जो सजदा करे, उसकी इजाजत नहीं। मज़ारत पर जाने का तरीका तो यह है, मज़ारत पर जाए तो कम से कम 4 हाथ के फासले से मज़ार से दूर खड़ा हो, इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करे, दुरूद और फातिहा पढ़े, अपनी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, साहिब मज़ार को वसीला बनाकर और वापस चला। ये हुक्म है मज़ारत पर जाए।